Good afternoon, ladies and gentlemen. Sorry, there is one lady. On behalf of PIB, I welcome you all to this press conference on the occasion of the launch of the Smart e-book of Ministry of Environment, Forests and Climate Change. It is my unique privilege and honor to welcome the Union Minister of State, Independent Charge for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Shri Prakash Javadekar ji. I extend a warm welcome to you, sir. My warm welcome to the Secretary, Ministry of Environment, Shri Ashok Lavazza, Director General of Forests and Special Secretary, Shri S.S. Garbial, Additional Secretary, Ministry of Environment, Shri Hem Pandey, Joint Secretary, Shri M.M. Kutti. Today's press conference will have this format. First, the Smart e-book of the Ministry will be launched by the Honorable Minister. Thereafter, he will make his opening remarks. Then he will take a few questions and answers. My request to you is kindly switch off your mobile phones or keep them on silent mode. And now over to the Honorable Minister. तो वही जाना है। We believe that both can go hand in hand, and the collective partnership of all stakeholders is necessary to mainstream the essence of sustainable development and to ensure protection of environment. Therefore, our vision and new initiatives, which are given in the C report, amply address the concerns of all stakeholders. India's rich heritage of the environmental issues. The Minister vision. Our vision is to have sustainable development, growth and environment protection. Our vision is development without destruction. Our vision is poverty eradication and green growth. Mission: clean water,
submission of applications. In an innovative step to ensure transparency, the ministry has started the process of online submission of applications for environment, ये हिंदी में भी होगा और हमारी टीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट, तो सबके प्रयासों से जो 9 महीने में हुआ, व्हाट वी आर डिलीवरिंग आफ्टर 9 months इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज इट। अभी शुरू करो थोड़ा सा, ये प्रीफेस तो हो गया, यू विल रीड इट and you can hear it. This smart book is an audio book also. So specially abled children and people can listen to it. And anybody who doesn't want to say read but listen, it is available to you. Vision is, ये कहाँ है? Book कहाँ है? Our vision is to have sustainable development, एक मिनट, वो and आवाज मत environment करो, protection. मैं ही बताता हूँ। हमने 3 बातें नहीं कही है। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा विजन है। डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, ये हमारा विजन है। ग्रोथ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन साइमल्टेनियसली, ये हमारा विजन है। और ग्रीन ग्रोथ, ये हमारा है। और पॉवर्टी इरेडिकेशन इसलिए लिखा है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन भी, जैसे उस समय इंदिरा जी ने कहा था दुनिया के प्लेटफॉर्म पे कि पॉवर्टी इटसेल्फ इज ए एनवायरमेंटल डिजास्टर, और मिशन जो है नेक्स्ट, हाँ, वो इंपॉर्टेंट है। क्लीन वाटर, क्लीन एयर, क्लीन एनर्जी, क्लीन एनवायरमेंट, मोर ग्रीन। सो दीज आर द फंडामेंटल थिंग। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको पता है, शुरू हुआ है। फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, CRZ क्लियरेंस, और इसमें 2200 एप्लीकेशंस अभी प्रोसेस में है, और वो ट्रैक कर सकते हैं फाइल मूवमेंट। अर्लियर फाइल मूवमेंट वाज अनट्रेसेबल, यहां प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट फाइल मूवमेंट भी ट्रैक कर सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिफेंस के आपको जैसे पहले बताया, हमने शुरू ही किया डिफेंस से, और उसका पॉलिसी था कि अगर देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा, और इसलिए 6000 किलोमीटर के बॉर्डर रोड्स और 100 किलोमीटर सीमा से सारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हमने जनरल अप्रूवल डाला। लोगों को एक गलत फहमी है कि इसका मतलब उनको पर्यावरण के जो निर्बंध है उससे मुक्त किया, नहीं है। वी हैव नॉट डाइल्यूटेड ए सिंगल कंडीशन। Environmental protection conditions will be the same. The processes were causing delay have been eliminated, and now it's a general approval with standard guidelines. Then that the same benefit has been extended for road sector in 117 left-wing extremism districts, और सीबर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी किए। नेक्स्ट, सबसे बड़ा निर्णय, and it has started working, giving results. For reforestation projects, earlier they used to say forest diversion. We have renomenclated it. Now we say reforestation, because every tree cut, there will be 2 or 3 fold more trees coming up. So it's a reforestation. And 90% of the files were coming to central ministry were of 40 hectares and below. So those powers have been given to regional empowered committees, which are made multi-stakeholder. So states are now not project proponents, but they are members of the committee. The experts, scientists, the regional office, and there are 3 expert members who are also there. So it's a big step towards decentralization and fast tracking the projects. Again,
no dilution of any condition. Linear projects, fast track to boost infrastructure. Linear projects like pipeline, transmission line, irrigation, drinking water canals, roads, railways, they are also been now powers for approval are empowered to regional empowered committees. And automatic approval for 220 kV transmission has been extended to all transmission lines. आज एक एनजीटी का फैसला आया है, उसमें हमारा यानी एक्स पार्टी स्टे है, तो हम हमारी भूमिका एनजीटी के सामने बहुत जोर से और ठीक तरीके से रखेंगे. हमें उम्मीद है कि वो स्टे वेकेट हो, क्योंकि उसमें यही था केवल एक कि एनपीवी के पैसे भरने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू और कैंपा एफॉरेस्टेशन के कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के पैसे भरने के बाद जब पहला अप्रूवल होता है तो उसके बाद तुरंत वो काम शुरू कर सकते हैं. दे शुड नॉट वेट टिल सेकंड फाइनल अप्रूवल. दैट वाज द इशू. बट उसमें एक्स पार्टी स्टे आया है. विल रिप्रेजेंट, वी आर श्योर विल गेट. फैसिलिटेटिंग फास्टर इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशन ग्रोथ, इसमें हमने ये किया है कि इंडस्ट्री और एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स है उनको 20,000 से ज्यादा अगर मीटर्स 2 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा अगर उनका है तो उनको यहाँ आना पड़ता था. अब हमने उसको स्टैंडर्ड गाइडलाइन बना रहे, नया ओएनएम इशू कर रहे. वो ओएनएम के साथ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के साथ ही उनको उसका पालन करना पड़ेगा और उसका इंस्पेक्शन हम भी कर सकते हैं. तो विद दैट प्रोविजन वी हैव गिवन देम दैट दे नीड नॉट कम हियर. प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का कल ये इरिगेशन में एक बहुत दुविधा थी. 2000 हेक्टेयर तक बढ़ाया है कल्चरल कमांड एरिया, बट इट्स यानी छोटे बांध बांधने में भी बड़ी दिक्कतें आती थी और सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ आते थे. नाउ दे आर ऑन स्टैंडर्ड अगेन. देन प्रोटेक्टिंग, वो आगे चलो, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग क्लीनर एनवायरमेंट. उसमें ये किया है कि जो आपको पता है कि सीमेंट के नॉर्म्स मोर स्ट्रिंजेंट किए हैं. 17 क्रिटिकली पोल्यूटिंग सेक्टर्स में 3206 यूनिट्स को हमने कहा है कि 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइसेस एट देयर एफ्लुएंट डिस्चार्ज पॉइंट एंड एट देयर चिमनी लगाने हैं. नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले लॉन्च किया था, अभी लोगों के कमेंट्स आए हैं, अब फाइनल लॉन्च करेंगे. बट 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन 1 कोड वो सब रहेगा उसमें. और कोल पर सेस डबल हुआ है और कैंपा का भी वैसे है. तो दैट्स ऑल अबाउट. नेक्स्ट इज कैंपा. इसमें हम नई बात यह है कि 3-4 बार कोर्ट में ये मसला गया. आज हमारे पास लगभग 38,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं. इसका 90% हम राज्यों को देना चाहते हैं और 90% में हम, लेकिन फिर बार बार कोर्ट से कोई आशंकाएं व्यक्त होती थी. तो इन आशंकाओं को निराकरण करने के लिए हम कैंपा के लिए एक अमेंडेड बिल लाएंगे, अमेंडमेंट का बिल लाएंगे और इसी सेशन में लाएंगे ताकि क्लैरिटी रहेगी, फिर कोर्ट को भी दिक्कत नहीं होगी. मुद्दा इतना ही था कि अभी फंड एक तीसरे अकाउंट में रहता है. एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जनरल अकाउंट सारे ट्रेजरी में जमा होता है, तो वो, और दूसरा होता है एक पब्लिक अकाउंट यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करने वाला अकाउंट. तो ये पैसा वहां पब्लिक अकाउंट में रहेगा. ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन करने वाला कानून अगर बनाने की जरूरत है तो हम बनाएंगे और इसी सब इसी. नेक्स्ट इज रिवर गंगा का. आपको मालूम है गंगा के सारी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और डोमेस्टिक वेस्ट यानी सीवेज वाटर और वेस्ट, इसके सभी प्रोजेक्ट्स अभी हर एक राज्य से बात करके स्ट्रीमलाइन हुए हैं और वो अभी उमा जी देख रही है, तो इसलिए हम उसमें महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं, सहायक भूमिका करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. आपको पता है सबसे दुनिया के सबसे ज्यादा
बाघ हमारे पास है 2226, 4 साल में 30% बढ़ा। और हमने इवन काजीरंगा में भी 3000 से ज़्यादा ये हुए हैं सिंगल हॉर्न राइनो। तो ये हमारा एक बहुत बड़े स्टेप्स है, उसका भी बखान है इसमें। फिर जो है जीआईएस बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, हम एक नए एम्बिशियस स्कीम है, ये जस्ट स्टार्ट है कि जीआईएस के आधार पर, और अलग अलग राज्यों ने भी अच्छे काम किए हैं। अब हम जंगल में हुए छोटे काम को या अवैध कटाई को भी पकड़ सकते हैं, और पूरे कुछ राज्यों में ये व्यवस्था है, कुछ में नहीं है। तो हम अवैध कटाई से लेकर हर कोस्टल का और फॉरेस्ट का सबका निगरानी एक तरह से अंतरिक्ष से करे, जीआईएस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो, इसकी हमने शुरुआत की है। बजट में और भी कुछ घोषणाएं हो सकती है, और उसके बाद हमने आगे और बढ़ना है, जिससे एकदम मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा पूरे वाइल्ड लाइफ फायर का भी, और जंगलों में आग लगती है उसका भी, नहीं तो पता ही नहीं चलता अनेक दिन, वो नहीं होगा। दूसरा, इको सेंसिटिव जोन की प्रक्रिया हमने शुरू की है। लगभग 137 हमारे इको सेंसिटिव जोन ये चले गए हैं, हमने अप्रूव किया है, और वो 2 महीने के जन सुनवाई के लिए विभिन्न स्टेज पर है। जैसे जैसे हो रहे नोटिफाई, और फिर फाइनल नोटिफिकेशन इशू होगा। फिर लीमा में जो हमने किया उसकी तो बुकलेट आपको दिया है पहले भी, तो आप सब जानते हैं, और आप सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा उसमें। कन्वेंशन ऑन सीबीडी, हाँ, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, अब एनबीए के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया हमने शुरू की है, वो जल्दी होंगे, और एनबीए पूरी सक्षमता से काम करेगी। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी हमने दुनिया में जो कहना है। अब लास्ट है एजेंडा 2015, ये महत्वपूर्ण है। एजेंडा है हमारी प्रक्रियाओं में और पारदर्शिता लाना, और सभी यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के गाइडलाइंस तैयार करना हर सेक्टर के लिए। 34 इंडस्ट्री का होमवर्क हमारा पूरा हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का। बाकी का भी हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इवॉल्व कर रहे हैं, ताकि एवरीबडी विल नो व्हाट आर द गाइडलाइंस। हर बार नया नया चिट्ठी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर स्ट्रेस ऑन कंप्लायंस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज तक लोग मुझे मिलते थे और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कहते थे कि साहब कुछ भी कंडीशन डालो। ऑफिसर्स को भी हमारे मिलते लोग, वो कहते साहब कंडीशन कुछ भी डालो लेकिन परमिशन दो, क्योंकि वो डिले से तंग थे। हमने ये किया, डिले नहीं होगा, लेकिन कंडीशन कुछ भी नहीं डालेंगे, लेकिन जो डालेंगे उसका 100% पालन करना पड़ेगा। कंप्लायंस विल बी द मेन स्टे ऑफ माय मिनिस्ट्री हेंसफोर्थ। रियल टाइम इंस्पेक्शन, उसके लिए सैटेलाइट और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइसेस करेंगे, पब्लिक कैंपेन्स करेंगे, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन रिवर एंड लेक डेवलपमेंट वो करेंगे। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ग्रीनिंग ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अभी हमारे क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को हम कहते हैं कि नई जमीन खरीद के दे दो फॉरेस्ट के बाहर की, लेकिन फॉरेस्ट की ही लाखों हेक्टर जमीन, करोड़ों हेक्टर जमीन डिग्रेडेड है, तो उसको पहले ग्रीन करेंगे। ब्रिंगिंग इन टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस, फिर प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, जैसे मैंने कहा। पुटिंग इंडिया स्टैंड और पेरिस के लिए बहुत तैयारी हम कर रहे हैं, INDCs तैयार हो रही है, और दुनिया के सभी देशों के साथ हम इस साल चर्चा करेंगे, और पेरिस में हमारी भूमिका बहुत मजबूती से हम रखेंगे। नेक्स्ट, हाँ, एक रहा इसमें स्लाइड, वो भी तुरंत ऐड की जाएगी। हम पब्लिक 5 तरह के पब्लिक कैंपेन्स बिल्टअप कर रहे हैं। पहले बिल्टअप कर रहे हैं कि अर्बन ग्रीन्स। अर्बन ग्रीन में शहरों में
लोगों के सहभागिता से वनों का निर्माण जंगल जमीन पर, एक, उसके डिटेल्स बाद में बताएंगे। फिर दूसरा है बड़ा कैंपेन कि प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया। इसमें स्कूल के बच्चे और बाकी सारे यूथ उसमें जुड़ेंगे। 20 शहरों में जहां एयर का पोल्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम है, वहां फ्रेश एयर माय बर्थ राइट, इस तरह का एक कैंपेन युवाओं से जोड़ के हम करेंगे। और हम लेक और रिवर रिस्टोरेशन और क्लीनिंग में भी लोगों का सहभाग लेंगे। तो इस तरह से 4-5 मुद्दे, और सेव वाटर सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये कंजर्वेशन की जो स्कीम है उसको भी जीवित करेंगे। तो एक तरह से पर्यावरण के विषय में मैं 1-2 वाक्य में कहूंगा, जो मिनिस्ट्री आज तक स्पीड ब्रेकर और रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री मानी जाती थी, वो अब फैसिलिटेटिंग मिनिस्ट्री होगी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दूसरा हम बदल रहे हैं कि जो लाइसेंस परमिट कोटा राज की मिनिस्ट्री थी, ये मंत्रालय लाइसेंस कोटा परमिट राज का मंत्रालय माना जाता था, हम इसका रूप बदल के लोगों के सहभाग का मंत्रालय बनाएंगे। लोगों के सहभाग से पर्यावरण की योजनाओं को आंदोलन में बदलाव करेंगे, ये है। और लास्ट में जो ई बुक आज दिया है, इसकी 3-4 विशेषताएं, जैसे वो ऑडियो बुक है, वैसे ये मोबाइल पे भी तुरंत दिखेगा, विंडोज, आईओएस और एंड्रॉइड, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे तुरंत उपलब्ध होगा और यू कैन रीड। एक पेज शेयर कर सकते हैं। और इसके अंत में हमने एक इवेंट्स वॉल लगाया है, जैसे जैसे हमारे इवेंट्स होंगे मंत्रालय के और कैंपेन जो करेंगे उसमें वो सब लगाते जाएंगे। वो और एक आधा फोटो लगाओ, जरा क्लिक करो, कोई भी एक फोटो क्लिक करे। हाँ, बड़ा होता है कि नहीं? तो ये होगा और यूजर कैन जंप टू एनी पार्ट ऑफ द बुक। ये बहुत बड़ा बुक है ही नहीं, बेसिकली कितने 20-25 पेज है, 20 पेजेस ही है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन किसी को जाना है तो कंटिन्यूअसली इंडेक्स दिखेगा, तो इंडेक्स से जिस पेज पे जाना है वो जा सकता है। और ये जो वीडियो है, ऑडियो है, वो इनबिल्ट है, उसके लिए वीडियो लिंक पे नहीं जाना पड़ता। सो इट्स इन द ई बुक इटसेल्फ। और ये शेयर कर सकते हो ट्विटर पे, फेसबुक के, गूगल प्लस। तो ऐसे विधाओं के साथ ये ई बुक हमें लॉन्च करते हुए एक तरह से 9 महीने का रिपोर्ट, और 9 महीने महत्वपूर्ण होते ही है, तो उसके लिए हमने आज ये रिपोर्ट पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसको पसंद करेंगे, वो यूज करेंगे, दुनिया भर में दिखेगा, क्योंकि यूनिवर्सल फॉन्ट्स लगते हैं। हाँ, नहीं तो कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं कि जो यूनिवर्सल नहीं। नाउ आई कैन टेक क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑन दिस एंड देन ऑन अदर पॉलिटिकल। यस, इस पे नहीं है। नहीं तो पहले इसके एक बार पूरे होते हैं ना। नहीं तो, मिनिस्ट्री से है। हाँ, इस ये आपके अमेंडमेंट्स कब आ रहे हैं, जो 5 ग्रीन लॉज के वो अमेंडमेंट्स आएंगे, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है। इस सेशन में आ जाएंगे। इस सेशन के 2 हिस्से हैं, लेट्स होप। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने अभी जो कहा कि 2200 एप्लीकेशंस आपके इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस के आपने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया है, ये पिछले 9 महीने के आपके 2200 एप्लीकेशन है जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, और इसमें मतलब ज़्यादा आपको, मतलब आप स्टेट वाइज कुछ बता सकते हैं कि किस स्टेट की तरफ से आ रही है, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के, मतलब किसके ज़्यादा आपके वो पास सब नहीं, हाँ बताता हूँ, क्लियरेंसेस? उसमें फॉरेस्ट के और इसी के बताता हूँ तुरंत। हाँ, ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए 556 है, 825 जो पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए थे वो है, और 969 फॉर फॉरेस्ट अप्रूवल्स है। तो ये तीनों बदले हैं, तीनों आंकड़े हैं, कुल मिला के 2200 है, और वो टाइम बाउंड चल रहा है। ये मुझे खुशी की बात यह है कि इट इज प्रोसेस्ड ऑन टाइम। और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी में आएंगे, और एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी के बाद
फिर हमारे 3 लेयर्स में से मेरे पास आते हैं, फिर तो ये प्रोसेस भी हम शॉर्टन कर रहे हैं। ड्यू डिलीजेंस होगा लेकिन एफिशिएंट टाइम का यूज होगा, ये हम Mr. Javadekar, Yes. there's this report in some newspapers that the ministry has not told the exact truth about these 6 hydropower projects in Uttarakhand. नहीं, वो गलत है। कोर्ट ने हमें स्पेसिफिक ये पूछा था, जो सुनवाई के लिए जो कोर्ट में जाते हैं उनको मालूम है, कमेटी के रिपोर्ट्स तो कोर्ट के पास है, लेकिन उन्होंने ये पूछा था कि भाई ये 6 प्रोजेक्ट्स की जिस समय परमिशन दी क्या स्थिति थी, उस समय क्या कानून नियम थे और कैसी परमिशन मिली है और कौन सी नहीं मिली है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देने को कहा था, वो दिया। So you're saying that this has nothing to do with the committee report. You're saying नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि जो कोर्ट ने मांगा था वही एफिडेविट में है। But sir, the committee is also saying that the expert committee. फिर वही बात कर रहा हूँ, कोर्ट ने जो मांगा वो स्पेसिफिक जानकारी मांगी थी तो वो दी है, बाकी कमेटी के रिपोर्ट्स वगैरह सब है ही। so will you be submitting that committee report as well, because that is important. That committee has specifically said that. नहीं, फिर वही बात कर रहा हूँ, कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट नहीं मांगी, कोर्ट ने ये 4 जानकारी मांगी जो हमने दी है। सर, दीपाली हूँ CNBC आवाज से। मैं ये जानना चाह रही थी, क्या आपका मंत्रालय कोई इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि 20,000 स्क्वायर मीटर से लेकर 1.5 लाख स्क्वायर मीटर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया जाए एनवायरमेंट क्लियरेंस का? हम ऐसा नहीं सोच रहे, हम तो उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से सोच रहे। केवल राज्यों को अधिकार देने से यहाँ आने का एक देरी बचेगी, लेकिन वो फिर वही रहता है। हम इसको स्टैंडर्ड में बदल रहे हैं कि भाई 20,000 का प्रोजेक्ट है तो वहाँ सोलर एनर्जी का कंपोनेंट कितना चाहिए, फ्लाई ऐश या मटेरियल में क्या चाहिए, या उनका वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो, फिर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें वेस्ट ट्रीटमेंट का क्या हो, फिर अगर उससे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट का कुछ हो, टाउनशिप है तो सीवेज ट्रीटमेंट का होगा। तो एनवायरनमेंट के सभी पहलुओं को उसके साइज के अनुसार स्टैंडर्ड्स दे देंगे हम, ये हम सोच रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, कब तक ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी? ये वर्क इन प्रोग्रेस है। Sir, Anna Hazare is protesting against the land ordinance today, and you know it has received opposition from. आज नहीं कर रहे, वो 25 को कर रहे हैं। 25 से कर रहे हैं और अभी लेकिन उनका चल ही रहा है जो प्रोटेस्ट है। The question is that. तो ये पहले समाप्त हुआ ना, दूसरा सुनो। Is the government? हाँ नहीं, इसको पहले पूछना है ना एनवायरमेंट। CR से नॉर्म्स को जो ईज आउट करने की बात की जा रही थी। ईज कुछ नहीं कर रहे, वही तो मैं बता रहा हूँ। You delete the words dilute, ease, clearance, diversion. No, these are not the words with the ministry. We are saying reforestation. उल्टा ज्यादा पर्यावरण के रक्षा के मानक हम बना रहे हैं, तो हम किसी को डाइल्यूट नहीं कर रहे और किसी नॉर्म्स को डाइल्यूट नहीं कर रहे, या ना ease of doing business means ease in processes, making processes more transparent. So is the government government ordered for lines translocation to Madhya Pradesh? Is there any progress on that, sir? ऐसा है, इस मंत्रालय में क्या कहूँ, सच्चाई ये है कि इसमें हर विषय इतने केसेस चलते हैं तो हम ट्रैक करते हैं, लेकिन हमारा लीगल डिपार्टमेंट ही नहीं था। अब बन गया? मैं अभी तो बनाऊंगा। सर अभी तक नहीं है। नहीं था सर ये 9 महीने में इतनी सारी चीजें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लाइक द लीगल तो वो हो रहा है, फाइनल स्टेज में है। सर फॉरेस्ट राइट्स Next एक्ट 15 पे days. क्या हो रहा है आपका? बहुत फॉरेस्ट राइट एक्ट का हमारा संबंध नहीं है, जो फॉरेस्ट एक्ट है वो हमारा है, राइट्स है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री मॉनिटर करती है, और ट्राइबल के 3 राइट्स होते हैं। एक, जहां वो बसता है वहां उसको बसने का अधिकार है, जहां वो खेती करता है उसको खेती करने का अधिकार है, उसको मालकी नहीं मिलती लेकिन उसको वो अधिकार है, और जो मिनिमम क्या बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करने का अधिकार है। ये 3 फंडामेंटल अधिकार है और वो बरकरार है। Sir, can you please specify what are your views? What is your stand on hydropower projects in eco-sensitive zones? जो मसला सब जुडिस है मैं आज नहीं बोलूंगा, एक बार मुझे लगता है नेक्स्ट डेट पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। मैं तो रोज मिलता ही हूँ, मैं हर सप्ताह आपको मिलने का वादा दे चुका हूँ और मिलता भी हूँ जिनको भी चाहिए। हाँ Or any other question on today's subject matter? नहीं, ठीक है, चलो अभी। Is the government looking to reconsider the bill in its ordinance form?
नहीं, पहले तो ये जो है लॉ अमेंडमेंट का विषय सर्वदलीय बैठक में, यानी लैंड्स के बारे में, जमीन अधिग्रहण के विषय में सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा हुई है और उसका बयान वेंकैया जी ने दिया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखो, ये जो अध्यादेश आया उससे क्या फायदा हुआ। 13 एक्ट थे, 13 एक्ट जो संसद ने पिछले साल पास किया, जयराम रमेश जी ने रखा था। जयराम रमेश जी ने रखा था, किसने रखा था? लैंड का, हाँ, जयराम रमेश जी ने रखा था। तो इसमें रेलवे एक्ट में अधिग्रहित जमीन को वो न्याय नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अधिग्रहित जमीन को वो कॉम्पेंसेशन और रिहेबिलिटेशन के नॉर्म्स जो जमीन अधिग्रहण कानून में थे वो नहीं लागू थे। कोल बेरिंग एरियाज एक्विजिशन को नहीं थे, रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस पर्सन को नहीं थे, रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं थे, पेट्रोलियम और मिनरल पाइपलाइंस के लिए नहीं थे, नेशनल हाईवेज के लिए नहीं थे, मेट्रो रेलवेज के लिए नहीं थे, इंडियन ट्रामवेज को नहीं थे, दामोदर वैली को नहीं थे, ऑटोमेटिक एनर्जी को नहीं थे। 13 कानून थे जिसको ये जो जमीन अधिग्रहण के जो फायदे हैं किसान को कि ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिलेगा और उसका रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट अच्छी तरीके से होगा। ये जो जमीन अधिग्रहण में सूचनाएं थी, जो प्रोविजंस थे, वो 13 कानूनों को लागू नहीं थे, तो आधे से ज्यादा किसानों को उसका लाभ नहीं मिलने वाला था। हमने सब किसानों को लाभ देने का काम इस अध्यादेश से किया है। Mr. Javadekar? लेकिन वो तो Mr. Javadekar, हाँ। so I have a question. This 13 laws that you mentioned, the original act as passed by Parliament actually had kept a 2 years time. And after 2 years, all these acts are supposed to give the same kind of compensation. So what you have done is only brought it forward. But the real question is about the social impact assessment, and there is a sense that you have diluted the social, not you, the government has diluted the social impact assessment through the ordinance. Could you at least take us through and explain to us why it is not the case? नहीं, पहले तो thank you very much for complimenting the government for bringing it the amendments which were to be 2 साल के बाद किसान को फायदा मिलने वाला था, वो हमने तुरंत लागू किया है। इसके लिए जो आपने धन्यवाद दिया उसको हम धन्यवाद कहेंगे। और दूसरा ये कहेंगे कि उसके फायदे तो बहुत है, जो हमने बदलाव लाए हैं उसकी तो पूरी चर्चा होगी पार्लियामेंट में, और चर्चा होगी और होनी चाहिए, यही हमारी भूमिका है। सर, अन्ना हजारे दिल्ली में उन्होंने कहा है, पूछा है कि कहाँ है अच्छे दिन? सब लोगों के लिए है अच्छे दिन। जावड़ेकर जी, पुराना वाला जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 एंड लैंड ऑर्डिनेंस दैट यू हैव ब्रॉट, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन कि कितना लैंड एक्वायर हुआ 2013 एक्ट के अंदर में? और अभी ऑर्डिनेंस तो अभी आया है, ज़्यादा एक्वायर नहीं हुआ होगा, बट इफ द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, हाउ मच? ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है संसद में इसकी चर्चा होगी, लोग उठाएंगे, मंत्री जवाब देंगे, और पहले भी आप पूछ सकते हैं, संबंधित मंत्री उसकी जवाब देंगे। हाँ, वो लैंड एक्विजिशन पे इतना ही मुझे कहना है, इससे ज्यादा नहीं। यानी कितना भी आप पूछोगे तो मेरे उत्तर 2 ही है। हाँ। इसमें कोई चेंज सरकार नहीं लाएगी, ये आप कह रहे हैं क्या? जो ऑर्डिनेंस लाए हैं उसमें कोई बदलाव अभी सरकार करने का, सरकार का कोई इरादा नहीं है? नहीं, ये आप मतलब पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं कहा, वैसा भी नहीं कहा। संबंधित मंत्री इसका जवाब। नहीं, अब राहुल गांधी जी 3 सप्ताह की छुट्टी पर गए हैं। अब कोई व्यक्ति विशेष कितने दिन छुट्टी पर जाए उस पर हम क्यों कमेंट करें? हम इतने छोटे नहीं है, किसी को छुट्टी पर जाना है तो जा सकता है, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक छुट्टी पर भेजा है, ये निश्चित है। थैंक यू।